Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक का मुद्दा है द सब्जेक्ट ऑफ OCM, जो मेरे पीछे है, और इसके अंदर स्पेसिफिकली द चैप्टर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जो हम पिछले कुछ लेक्चर्स से काफ़ी ध्यान से मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, और अपने दोस्तों को भी बताइए शेयरिंग करके, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो सके. बिजनेस सर्विसेज इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स where the significance of that chapter generally and the significance important महत्वपूर्णता weightage wise काफ़ी ज़्यादा रहता है. ओके, मूविंग ऑन. ये चैप्टर में हमने अब तक क्या सीखा है? वेल, बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये हमने डेफिनेटली सीख लिया है. एंड वी हैव कवर्ड अप बैंकिंग एज अ बिजनेस सर्विस एंड इंश्योरेंस एज अ बिजनेस सर्विस, विच आर द मोर इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ऑलरेडी हो चुका है. हमारा ध्यान अभी ट्रांसपोर्ट की ओर जा रहा है. ओके, ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है? वेल, क्वेश्चन एकदम सही नहीं है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के बराबर के मैन इज़ अ सोशल एनिमल. सोशल एनिमल का मतलब क्या होता है कि हम दूसरों के साथ रहते हैं. दूसरों के साथ हमारा उठना बैठना, घूमना फिरना, आना जाना, ये सब चलता है, और लगातार ऑन अ डेली बेसिस हम करते हैं. अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो, ट्रांसपोर्ट अलग अलग स्टाइल्स में हमको दिखाई देता है. फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिया, ओके, टिल टुडे, आजकल का 2021 का जो ज़माना है, ट्रांसपोर्ट के अंदर देयर हैव बीन मल्टीपल चेंजेस. बराबर, वो चीज़ें जो 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, समथिंग लाइक अ ड्रोन. और अगर ड्रोन शुरुआत भी हुआ है, तो वो जो ड्रोन है वो सिर्फ खेलने के लिए, या वो ड्रोन मज़े की एक्टिविटीज़ के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है. बट नाउअडेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ड्रोन, विच इज़ अ फ्लाइट मैकेनिज़्म, जहाँ पे किसी को बैठने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आजकल हमारी दुनिया कुछ इस लेवल तक पहुँच गई है कि वो ड्रोन इतना बड़ा बनाया जा रहा है
कि देर कैन बी 1 or 2 पैसेंजर्स सिटिंग इन इट. इट इज़ एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एंड रिमोटली pre-programmed manner में it can take off from one place and take that passenger to another place. आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैफिक जैम मिलने वाला नहीं है, आप समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे. सो टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, हाँ, आई रिपीट, प्रोग्रेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, समथिंग कॉल्ड एज अ हाइपरलूप. अब ये हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि नॉर्मली कोई भी गाड़ी है ना, रास्ते पर जो दौड़ाई जाती है, उसका स्पीड एक तरीके से थोड़ा लिमिटेड होता है, वो कितनी भी पावरफुल गाड़ी क्यों ना हो, क्योंकि द साइंस ऑफ फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन वर्क्स अगेंस्ट इट. मतलब पहिया रास्ते पर घिसता रहता है, तो वो फ्रिक्शन है. द सेम फॉर अ ट्रेन, उसका भी तो पहिया ट्रैक्स के साथ. तो हाइपरलूप विच इज समथिंग विच आई जस्ट नाउ शोड यू बिहाइंड, ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है वो ऐसे थिंकिंग पे है, चल रही है, जहाँ पे उसके अंदर जो पॉड्स रहते हैं, ओके, मतलब आप रेलवे के कोचेस कह सकते हो, वो एक तरीके से लेविटेट, मतलब हवा में ही उड़ रहे हैं. तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली चला जाता है और इतनी तेज़ी से, ओके, ये चीज़ दौड़ती है. ओके, तो मतलब इसके अंदर जो बैठे हैं वो यात्रा जो 2 घंटे लेती थी वो 20 मिनट में पूरी हो जाएगी. इतने फास्ट ये चल सकता है. काफ़ी देशों में इसको डेवलप किया जा रहा है. एंड मे बी जब मैं नेक्स्ट बैच को पढ़ाता हूँ तो मैं एक्चुअली किसी देश के हाइपरलूप की वीडियो आपको दिखा सकूँ. ट्रायल काफ़ी जगहों पर ऑलरेडी किया गया है, बट उसके लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी किया जाना चाहिए. सो टुडे हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं. व्हाट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक. इंसानों को, मेन और गुड्स, यस, उसमें लेडीज़ भी आते हैं. ओके, सो इंसानों को एक जगह से, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है. देयर आर मल्टीपल व्हाट यू कॉल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मेरे पीछे काफ़ी लंबी लिस्ट आपको देखती है. उसके अंदर आपको नॉर्मल आपका ट्रक दिख जाएगा, डिलीवरी की गाड़ियाँ दिख जाएगी, मोनोरेल दिख जाएगा, केबल कार, जो अगर आप किसी शहर में रहते हो इतना इस्तेमाल नहीं होगा, बट किसी हिली टेरेन में डेफिनेटली काफ़ी, जहाँ पर काफ़ी माउंटेन्स है, ओके, पर्वत है, वहाँ पर डेफिनेटली यूज़ किया जाता है. काफ़ी जगहों पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है. कार तो हमारे आसपास हम देखते ही देखते हैं. ट्रॉली, मेट्रो, ट्रेन, बाइसिकल, दीज आर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को विभाजित किया जा सकता है, उसको कैटेगराइज किया जा सकता है. हम एक्चुअली आज सुबह को जब मैं ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने मेरी बेटी को जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ओके, उनके ऑनलाइन लेक्चर में उनकी टीचर उनको पढ़ा रही थी कि देखो, अ कार इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ये लेकर जाएगा. ट्रेन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, शिप इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरप्लेन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो मैं बोलूँ यार, मैं तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को सेम ऑलमोस्ट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ. ओके, डोंट वरी, ऑब्वियसली उनको सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती है, आपको थोड़े एडवांस लेवल पे ये समझना है. आपको बेसिकली द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस दैट एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स विथ इट, ओके, ये समझना है. एट द वेरी बिगिनिंग, एंशियंट टाइम, बहुत पुराना ज़माना, जहाँ पे इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ओके, आजकल वी हैव गॉट ईवी कार्स, बराबर, जो बैटरी पे और इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. एंड इनफैक्ट जो फ्यूल बेस्ड कार्स है, ओके, उससे काफ़ी तेज़ और काफ़ी एफिशिएंटली ऑपरेट करती है, उसका मेंटेनेंस ना के बराबर होता है. सो आई रिपीट माई सेल्फ, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, तो ईवी कार्स के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा होगा. सो एट द वेरी बिगिनिंग किस तरीके का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ रहेगा, ओके, बिकॉज
majority of the world is covered with what do you call water. I am guessing water transport. कहाँ ना कहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एट द वेरी बिगिनिंग जो ह्यूमन सेटलमेंट होते थे, जहाँ पे इंसानों की बस्ती होती थी, कॉलोनीज होती थी, सोसाइटी होती थी, क्योंकि जहाँ पर कोस्ट या पानी है, पानी की तो ज़रूरत सबको लगती है ना, हाँ, वो आप आजकल शहर बनाए गए हैं और पानी को दूर से शहर की ओर पाइपलाइंस के द्वारा डायरेक्ट किया गया है. बट एट द वेरी बिगिनिंग, सेंचुरीज बैक, द सेटलमेंट ऑफ पीपल वॉज बिसाइड्स वाटर. तो मैं गेस कर रहा हूँ पहले वाटरवेज आया होगा. उसके बाद में जैसे ही पीपल स्टार्टेड टू मूव इन, अंदर आने लगे इन द लैंड, रोडवेज की शुरुआत हो ही रहेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रेलवेज, एयरवेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी विल टेक अप ईच ऑफ देम इन डिफरेंट लेक्चर्स और इसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे. टुडे द प्लान इज फॉर मी टू टीच यू roadways, the importance of it, what is it, and what are the advantages and disadvantages. This is a very good question that can come for you for distinction between. So whether you talk about a bullock cart, it is also a form or it is using road transportation. Whether you talk about a cycle, आजकल काफ़ी लोग health conscious हो गए हैं. Especially मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा इन अ यूरोपियन कंट्री, आई थिंक यूके की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे ही कोविड स्ट्राइक हुआ और उसके बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना थोड़ा नहीं, काफ़ी डर लगने लगा, चिंता सताने लगी. बस में एक साथ में ट्रैवल करना, मेट्रो में एक साथ में ट्रैवल करना. तो उस टाइम पे काफ़ी लोग, अगर उनका वर्क प्लेस नज़दीक था तो वो साइकिल पे जाते थे. शौक के लिए नहीं, उनको काम पे जाना है, इसके लिए उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल किया. तो वेदर साइकिल आप चलाओ वो भी रोड ट्रांसपोर्ट ही एक तरीका है, वेदर आप बस का इस्तेमाल करो वो भी रोड ट्रांसपोर्ट का एक तरीका है. बस ट्रांसपोर्ट इज समथिंग विच इज़ अवेलेबल in every country of the world, very very important, in every country of the world, because it is a lot more simpler to operate buses. There are many African countries जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्टेशन, रेल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ पे टेरेन, वहाँ पे ट्रैक्स को बिछाया जाना, उसका जो कॉस्ट फैक्टर आता है, एंड मैनी ऑफ दीज अफ्रीकन कंट्रीज आर फाइनेंशियली नॉट वेल टू डू, इतना पैसा नहीं उनके पास में, तो वहाँ पे रेल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया है. बट डेफिनेटली रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, या आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो. ये सारी चीज़ें यूज़ क्या करती है, रोड की फैसिलिटीज़ को. एक बार आपने रास्ता बना दिया, एक बार सरकार ने, गवर्नमेंट ने, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने, या जो भी वहाँ की सिविक अथॉरिटी है, उन्होंने रास्ता बना दिया, तो इसके ऊपर ये सारे वाहन चल सकते हैं. ओके, रोड आर मीन्स that connect people and places. Very true. In fact, a road, a airport cannot reach, touch to your residence or building. आपको थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़ेगा. वाटरवेज, ट्रेन, रेलवेज नहीं, आपको उन तक जाना पड़ेगा. तो एक बेस्ट एडवांटेज जो रोड ट्रांसपोर्ट का होता है वो है फाइनल डिलीवरी. कि रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वन थिंग जिसके ऊपर जब गाड़ी चलाई जाती है वो आपके डोर डिलीवरी कर सकता है. तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस. ओके, दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड विच इज़ थ्रू. इट प्रोवाइड्स ऑल ओवर कनेक्टिविटी. वेरी थ्रू. रास्ते पर प्लेटो रीजन में तो रास्ता बनाया ही जा सकता है, बट देन बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, ओके, पहले माउंटेन्स को घूम कर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस करना पड़ता था, और उसके वजह से टाइम, और उसके वजह से एक्सीडेंट्स, उसके वजह से खर्चा काफ़ी होता था, लैंडस्लाइड्स की काफ़ी टेंशन होती थी. बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो माउंटेन के, वो पर्वत के थ्रू ही टनल बनाया जाता है, वो काफ़ी तेज़ हो चुका है और ऑटोमेटिकली काफ़ी फास्ट उसके वजह से ट्रांसपोर्ट हो चुका है. तो ये रोडवेज की वजह से पॉसिबल है. वेरियस मीन्स, आप साइकिल कहो, रिक्शा कहो, बसेस कहो, ये सारी चीज़ें क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट. बस रैपिड ट्रांसपोर्ट. ओके, देयर आर मेनी कंट्रीज जो
लोगों को एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि अपने अपने प्राइवेट गाड़ीज को आप हर दिन मत निकालो घर से। ऑफिस को जाना है बट आप बस ट्रांसपोर्ट को लो। अच्छा, और ताकि ज़्यादा, क्योंकि पोल्यूशन ऑटोमेटिकली, तो रोड ट्रांसपोर्ट का एक डिसएडवांटेज पोल्यूशन होता है। द मोर व्हीकल्स जो फ्यूल बेस्ड है, पेट्रोल बेस्ड है, डीजल बेस्ड है, उसके वजह से पोल्यूशन का लेवल काफ़ी होता है, विच इवेंचुअली इज़ बैड फॉर द एंटायर यूनिवर्स, द एंटायर अर्थ। ओके, तो इसके लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी सिटीज़ में बनाया गया है, जहाँ पे रास्तों पर एक डेडिकेटेड लेन, एक लेन सिर्फ बस के लिए दिया जाता है। तो उसको पता है कि भाई बीच में कोई आने वाला नहीं, कोई ऑटो, कोई टू व्हीलर बीच में कट नहीं मारने वाला है, तो स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेज जो हमारा देश है इंडिया, दैट इज़ कनेक्टेड टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोड्स। विलेजेस में आप बोल सकते हो कच्चे रास्ते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट रोड्स रहते हैं, स्टेट और नेशनल हाईवेज, ये सारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, सो जो हमारा देश है और जो हमारी सरकार है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में बांटी गई है, बराबर। तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक मिनिस्ट्री होगी, इंश्योरेंस के लिए एक होगी, बैंकिंग के लिए एक होगी, तो आई रिपीट, उसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है और वो सारी डिसीशंस लेती है एज फार एज रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर कनेक्टेड टू रोड ट्रांसपोर्ट आर कंसर्न। चलिए अभी हम रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इट इज़ वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स जो आपको आपके घर तक डिलीवरी करा के देगा, बाकी सभी के लिए वो डिसएडवांटेज ज़रूर बन जाता है। मैंने कुछ पॉइंट्स और कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किए हैं। चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस, अगर मैं एयरवेज से इसकी कंपैरिजन करता हूँ, तो डेफिनेटली ये थोड़ा चीप ज़रूर है, थोड़ा सस्ता ज़रूर, इनफैक्ट काफ़ी सस्ता होता है कंपेयर्ड टू एयरवेज। उसके बाद पेरिशेबल गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंटली, कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट अ फास्टर स्पीड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कि अगर किसी खेत में किसी भी तरीके की भाजी उगाई जा रही है, वेजिटेबल्स उगाया जा रहा है और उसको दूर नहीं ले जाना है, उसको मंडी तक लेकर जाना है, तो वहाँ पर वाटरवेज तो पॉसिबल नहीं होगा। आप वहाँ पर ट्रेन का इस्तेमाल नॉट नेसेसरली कर पाओगे। तो इन जगहों के लिए और इन प्रोडक्ट्स के लिए और छोटे डिस्टेंसेस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेटर मीन्स। इट इज़ फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, येस, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग, अगर आपको एयरक्राफ्ट से सामान निकालना है, कहाँ पे निकाल सकते हो? ओनली एट एन एयरपोर्ट, क्योंकि उनके पास में उस तरीके का मैकेनिज्म होता है। उसी तरीके से अगर रेलवे से सामान निकालना है तो वो भी आपको कहाँ ना कहाँ पे प्लेटफॉर्म की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो रोडवेज के लिए वो अच्छा है, जिधर चाहो गाड़ी लगा लो, बराबर। इनफैक्ट पार्किंग के लिए तो लोग वही करते, जगह मिल गई गाड़ी को घुसा दिया, अच्छा, और वहाँ पे आप लोड और अनलोड आसानी से कर सकोगे। नेक्स्ट, डोर टू डोर सर्विस तो बस रोड ट्रांसपोर्टेशन ही दे सकता है। वाटरवेज, व्हाट डू यू कॉल, हाँ, ऐसे कुछ शहर ज़रूर हैं जो पानी के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं ऐसा ज़रूर बोल सकता हूँ, या आप भी बोल सकते हो, सर वहाँ पे तो वो छोटे छोटे बोट होते हैं ना, वो तो दरवाजे तक आते, क्योंकि आपका दरवाज़ा जब खुलता है तो वहाँ पे लेक सामने होता है। अच्छा, वो एक्सेप्शन वाली सिचुएशन है, बट नॉर्मली बाकी एनीवेयर इन द वर्ल्ड डोर टू डोर सर्विस इज़ ओनली प्रोवाइडेड। वो इज़ अमेजॉन, वो इज़ फ्लिपकार्ट, सो गुड, क्योंकि उन लोगों का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का लॉजिस्टिक्स है, वो जो रोड डोर टू डोर डिलीवरी की सर्विस है, वो काफ़ी तेज़ है। लास्टली, इट हेल्प्स पीपल travel and carry goods from one place to another where other mode of transport is not available. Again, everywhere railways cannot be built, everywhere waterways are not available, everywhere airport cannot be built because they are a lot of costly affair. तो रोड बनाना काफ़ी सस्ता होता है, इसके लिए रोडवेज की अवेलेबिलिटी नॉर्मली 100% रहती है। ओके,
ड्यू टू, ये अभी डिसएडवांटेजेस है, ओके, कि ये वुड कम समथिंग लाइक खराबियां, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जो ट्रक होती है ना, ओके, चलो इंडिया में अगर आप रहते हो, ऑब्वियसली जो हमारे इंडियन ट्रक्स है वो काफ़ी छोटे होते हैं इन कंपेयर्ड विद ट्रक्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ में चलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बहुत अच्छे हैं और बहुत स्मूथ है। इसके लिए जो ट्रक्स की साइज़ होती है वो हमारे इंडियन ट्रक्स की साइज़ से 2 या 3 गुना लंबा ज़रूर रहता है, बट स्टिल उतनी ही साइज़ में आप सामान यहाँ से वहाँ भेज सकते हो। तो इसके लिए जो कैपेसिटी है, लोड होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन का, सीमित है, लिमिटेड है। हैवी एंड बल्की गुड्स को रोड ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट और महंगा भी होता है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, मैंने ये विंड टर्बाइंस देखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू आई मीन बाय विंड टर्बाइंस, ओके, जहाँ पे विंड एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और वो जो विंड टर्बाइंस का एक विंग स्पैन होता है वो इतने मीटर बड़ा होता है, ओके, कि उसको रोड ट्रांसपोर्टेशन से अगर कोशिश किया जाए, ओके, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसफ़र करना, बिकॉज अ विंड मिल is going to be located in open areas very far away where there is very heavy gust of wind, जहाँ पे तेज़ी से हवा जाती है, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पे नहीं हो सकता। तो बड़ा सामान जो होते हैं, बड़े मशीन्स जो होते हैं, ये रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर वेदर कंडीशंस, आजकल तो आपने सुना ही है, 2021 का टाइम है और पिछले 2-3 सालों से बिकॉज एनवायरनमेंट पे हमारा ऐसा हिट हुआ है, ओके, द आइस कैप्स, ओके, आर मेल्टिंग, बर्फ़ जो है पिघल रहा है, जिसके वजह से जो लेवल ऑफ सी है वो थोड़ा थोड़ा करके 1 इंच 2 इंच ऊपर ऊपर आ रहा है। तो उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, आकाशात्मक ऑल ऑफ अ सडनली फ्लडिंग होती है, जो कंट्रीज़ और शहरों के अंदर में भी पिछले 500 सालों से फ्लडिंग नहीं हुई है, बरसात के कारण अभी वहाँ पर हो रही है। तो एकाएक क्या बंद हो जाता है जब बाढ़ आती है, वेल रोड ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। और जो गाड़ियाँ होती है, मतलब आपने कभी भी अगर यहाँ पे पिक्चर या वीडियो देखा होगा, गाड़ियाँ जो रहती है वो बच्चों के खिलौने के जैसे तैरने लग जाती है, ओके। तो ये नॉर्मली एयरक्राफ्ट या वाटरवेज या रेल ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता होगा। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट्स का पॉसिबिलिटी काफ़ी है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी जाती है। रोड, अगर आप कहीं नई गाड़ी लेकर आए एंड यू आर अ गुड ड्राइवर, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, अच्छा, आप सोच समझ के बड़े मैच्योरिटी से अपनी गाड़ी को चलाते हो, बट देन ये ज़रूर रेडी रहना कि आपकी गाड़ी ठुकने वाली है, आपकी गलती की वजह से कम, दूसरों की गलती की वजह से ज़्यादा। तो एक्सीडेंट, दुर्घटना काफ़ी होती है, उसके वजह से नुकसान काफ़ी होता है। और लास्ट में, क्योंकि इतना प्रोग्रेस क्यों किया जा रहा है कार की टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसके वजह से जो फ्यूल बेस्ड इंजन्स होते हैं, जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उसके वजह से जो वातावरण दूषित होता है, पोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी हाई है, और उसके वजह से जो इंसानों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक डिसएडवांटेज है। वेल, दैट इज़ इट फॉर टुडे। व्हाट इज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसकी अच्छी बातें क्या है, उसकी बुरी बातें क्या है, ये आई होप आज आपको समझ आया है। आने वाले लेक्चर्स में हम रेल के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा, वाटरवेज के बारे में आपको सुनाऊंगा, मैं एयरवेज के बारे में सुनाऊंगा, और बाकी के जो भी छोटे मोटे तरीके आजकल उपलब्ध है ट्रांसपोर्टेशन के, ये और आगे कुछ आने वाले लेक्चर्स में। आप अगर पुराने हमारे मित्र हो, शेयरिंग जारी रखिए, और नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपके कीमती समय के लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूं, और जल्द ही मेरे साथ आप जुड़े बाकी के लेक्चर सीरीज़ के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने छोटों का
अपने परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।